Hello students, today we will discuss electrolysis of sodium chloride solution. So electrolysis can be used to split a dissolved ionic compound and form new substances. So NaCl, this is in solid form when it is dissolved in water, aqueous solution, excess of water. Then these are split into new ions, sodium ions and chloride ions. So here we also see that water is also dissociated. H2O is also dissociated into H ions and OH ions. So there are two types of cations, H ions and sodium ions, produced at cathode, negative electrode, chloride ions and OH ions produced at anode. ठीक है student? So when aqueous solution of NaCl is electrolyzed, aqueous solution means excess of water, then aqueous ions of sodium ions, chloride ions are produced, and H2O is also decomposed or dissociated into ions such as H positive ions and OH negative ions. So there are two types of cations, sodium ion and H ions, produced at cathode, chloride ions and OH ions produced at anode. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लिया आपने. Now electrolysis of sodium chloride can be used to split a NaCl dissolved into ionic compound and form new substances, sodium ions, chloride ions, H ions and OH ions, hydroxide ions. So this is the experiment. Now stage 1, the electrolyte is a solution of sodium chloride. तो स्टूडेंट हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड का. Sodium chloride salt is dissolved into water to make it a solution. Now during electrolysis the electrolyte is broken down. So NaCl is broken down into sodium ions and chloride ions. Now क्या कह रहा है स्टूडेंट? Bubbles of gas form at both electrodes. So आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रही होगी स्टूडेंट. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे क्या प्रोड्यूस हुई? बबल्स ऑफ गैस. वो हम देखते हैं गैस क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज द स्टेज 1. स्टेज 1 मीन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इनटू सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, H and OH ions, and bubbles of gas form at both electrodes. अब ये गैस क्यों प्रोड्यूस हो रही है वो हम अभी देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट स्टेज 2. A pale green gas forms at the positive electrode. स्टूडेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोड्यूस हुई? एक pale green gas forms at the positive electrode. This product is collected in a test tube so that it can be tested. So स्टूडेंट आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस आ रही है? आपकी कौन सी गैस आ रही है इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे? पेल येलो. एंड दिस कैन बी कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब एंड आफ्टर दैट वी कैन टेस्ट इट. Now in the second tube क्या हो रहा है स्टूडेंट? A colorless gas formed at the negative electrode and this product is collected in test tube. हमारे पास दो ट्यूब्स आ गई स्टूडेंट. ट्यूब नंबर 1 में कौन सी गैस आ गई? ये आपकी ट्यूब नंबर 1 है. यहाँ पे कौन सी गैस आ गई? आपकी ग्रीन. एंड इस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस हमने कलेक्ट कर ली है? ए कलरलेस गैस फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड. दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से हमने कौन सी गैस एक्सट्रैक्ट कर ली है? ग्रीन गैस.
एंड इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है? कलरलेस गैस। नाउ अगेन remaining solution also can be tested. A sample of the solution that remains in the apparatus also collected for testing. उसको भी हमने क्या किया है, जो रिमेनिंग सोल्यूशन बच गया था, इलेक्ट्रोड से हमने ट्यूब 1 में सैंपल कलेक्ट किया, ट्यूब 2 में नेगेटिव इलेक्ट्रोड सैंपल कलेक्ट किया, और बाकी जो सोल्यूशन बच गया था उसको हमने कहाँ कलेक्ट कर लिया है? ट्यूब 3 में। अब इन ट्यूब्स में क्या है स्टूडेंट, वो हम अभी देखते हैं। So simple tests can be used to identify the products of the electrolysis of sodium chloride solution. हमारे पास ये सिंपल प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब क्या क्या हमारे पास आया? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एच आयंस एंड ओ एच आयंस। अब ये आपकी ट्यूब 1 और ट्यूब 2 में कौन सी गैस है, और इस थर्ड ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन है, ये हम स्टूडेंट अभी डिस्कस करते हैं। सो हाउ डज द क्लोरीन फॉर्म? सो स्टूडेंट हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की। सो NaCl, तो कौन से आयंस प्रोड्यूस हुए थे? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, H आयंस, OH आयंस फ्रॉम वाटर। सो द नेगेटिव क्लोराइड आयंस Cl नेगेटिव आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। ठीक है स्टूडेंट, ये आप देख चुके थे। यहाँ पे इस ट्यूब में क्या है आपका? एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मींस NaCl प्लस वाटर, और इस ट्यूब की तरफ, इस इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ था? Cl नेगेटिव, बिकॉज Cl नेगेटिव आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम दिस सोल्यूशन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, and here the Cl negative ions lost electrons to make chlorine atoms. तो यहाँ पे Cl negative ions इस वाले इलेक्ट्रोड पे, इस वाले सोल्यूशन से यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? NaCl सोल्यूशन प्लस वाटर इस वाले बीकर में। तो यहाँ से कौन अट्रैक्ट हो रहा है? क्लोराइड आयंस कहाँ पे आ रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड की तरफ, और यहाँ पे Cl नेगेटिव क्या करेगा? Cl नेगेटिव लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन एटम विच देन फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ये वाले क्लोरीन एटम्स मिलके स्टूडेंट अब क्या बनेंगे? ऐसे क्लोरीन एटम्स मिलके क्या बनेंगे? Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस, एंड विच इज ऑफ पेल ग्रीन कलर। जो यहाँ पे आपको कलर नजर आ रहा था, किसका नजर आ रहा था? क्लोरीन गैस का। किसका नजर आ रहा था? क्लोरीन गैस का। सो Cl नेगेटिव आयंस लॉस इलेक्ट्रॉन्स at the anode and to form Cl2 molecule chlorine gas. अब कह रहा है आर द Cl नेगेटिव आयंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। स्टूडेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? Cl2 बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। इट मीन Cl नेगेटिव आयंस क्या हुए? ऑक्सीडाइज। क्या हुए? ऑक्सीडाइज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय ईच Cl नेगेटिव आयन? सो ईच Cl नेगेटिव आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? एक इलेक्ट्रॉन। सुन यहाँ पे बहुत सारे Cl क्लोरीन एटम्स हैं। अब Cl एटम मिलके और दूसरा Cl एटम मिलके क्या बनेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो ईच Cl नेगेटिव आयन लॉस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ मेनी Cl नेगेटिव आयन ज्वाइन टू मेक ए Cl2 मॉलिक्यूल? 2 chlorine molecule, 2 chlorine atoms. These 2 chlorine atoms join to form chlorine molecule 2. And what is half equation for this redox process? Student, this is the half equation. Redox means reduction plus oxidation. और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? Oxidation. Because Cl negative ions are oxidized. So कौन सी half equation है? 2 Cl negative after loss 2 electrons. क्या बना? क्लोरीन गैस ऑफ पेल येलो कलर। यहाँ पे जो कलर आ रहा था किसका आ रहा था स्टूडेंट? क्लोरीन गैस का। और इस वाले बीकर में क्या है? सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन प्लस वाटर। सो यहाँ से Cl नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हुए, कहाँ पे आए?
इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मींस एनोड पे, और यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, किसको दे दिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, और क्या बना, क्लोरीन गैस, और यहाँ पे जो गैस आई वो क्या, क्लोरीन गैस। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हाफ रिएक्शन आया, ये मैं आपको लिख के बता चुका हूँ। Cl नेगेटिव आयन आफ्टर लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना, Cl2 molecule क्लोरीन गैस, एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज हियर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1/2 इक्वेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ इन द electrolysis of sodium chloride solution, sodium ions might be expected to form sodium at the negative electrode। अब इस वाले बीकर में क्या था, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होकर क्या आएगा, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस स्टूडेंट यहाँ पे आ गए थे इस वाले इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से क्या आए, सोडियम आयंस, क्योंकि सोडियम आयंस के आपके पॉजिटिवली चार्ज, और वो कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम आयंस आएंगे, सोडियम आयंस यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स लेके इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से, और सोडियम एटम बनेंगे, और यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगी, सोडियम, क्या डिपॉजिट होगा, सोडियम। बट ऐसा नहीं है। इस वाले बीकर में स्टूडेंट NaCl भी है और प्लस वाटर भी है, और वाटर भी आगे क्या होगा, H2O। क्या होगा, वाटर इज अ डिसोशिएट टू फॉर्म H आयंस एंड OH आयंस। इट मीन्स इस वाले जो सोल्यूशन में NaCl सोल्यूशन प्लस वाटर है, यहाँ से अब सोडियम आयंस भी आ रहे हैं और H आयंस भी आ रहे हैं। अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन पहले पहुंचेगा, सोडियम आयंस पहुंचेंगे कि H आयंस पहुंचेंगे। स्टूडेंट यहाँ से इस वाले सोल्यूशन में NaCl भी है प्लस वाटर भी है आपका, और इस वाले सोल्यूशन से सोडियम आयंस भी यहाँ पे आएंगे और H आयंस भी आएंगे। हमने देखना है कि यहाँ पे कौन पहले पहुंचेगा, H आयंस पहुंचेंगे कि सोडियम आयंस पहुंचेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो इंस्टेड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस हियर। कह रहा है यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस। सोडियम डिपॉजिट होने की बजाय क्या प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन गैस। कह रहा है क्यों, दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आल्सो कंटेन्स, अब क्या था स्टूडेंट, वाटर भी है साथ में, वाटर में क्या है, H आयंस। H आयंस फ्रॉम सम ऑफ द वाटर H2O, H2O इज डिकम्पोज्ड H आयंस एंड OH आयंस। ठीक है स्टूडेंट, H आयंस भी हैं। अब एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहां से दोनों आयंस आ रहे हैं, सोडियम आयंस भी आ रहे हैं आपके, H आयंस भी आ रहे हैं। बट कह रहा है H आयंस कंपीट विद द सोडियम आयंस, लेकिन यहां पे पहुंचे कौन, H आयंस, पहुंचे कौन, H आयंस, एंड H आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, द सोडियम आयंस स्टे इन द सोल्यूशन। सोडियम आयंस स्टूडेंट यहीं पे सोल्यूशन में रह गया, और H आयंस कंपीट विद द सोडियम आयंस, यहां पे आके H आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए, गेन करके क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस गैस, और यहाँ पे कलरलेस गैस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट H आयंस, मास ऑफ H आयंस इज लेसर देन सोडियम आयंस। अब जिसका मास स्टूडेंट कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इट मींस H आयंस की मोबिलिटी सोडियम आयन से क्या है, ज्यादा है। सो H आयंस इज लाइटर देन सोडियम आयंस, सो दैट्स वाई इसकी मोबिलिटी इन सोल्यूशन इज मोर देन सोडियम आयंस, और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। एक रीजन ये आ गया कि यहाँ पे H आयंस ही क्यों पहुंचा पहले, सोडियम आयंस क्यों नहीं पहुंचे। So mobility of H ions is more than mobility of sodium ions in solution. First reason is this. Second reason, hydrogen has one electron only. Hydrogen has one electron, and after losing one electron, H ions is completely empty. Its orbitals are completely empty, and sodium atom has
281. Its electronic configuration is 281 and after losing 1 electron, सोडियम आयन बन गया आपका। अब सोडियम आयन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 28। इट मीन्स यहाँ पे अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट क्या है, पूरा फुली फिल्ड। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है स्टूडेंट, सोडियम आयन की फुली फिल्ड, ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा। इट मीन्स इसके ऑर्बिटल्स क्या हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। अगर सोडियम आयंस के ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। जिसके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हों वो क्या होता है, स्टेबल। एंड सोडियम आयंस हैज़ very little tendency to gain the electron because they are already stable, their orbitals are already fully filled, and in case of H ions orbitals are completely empty. अब जिनके orbitals empty हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की क्या होगी, ज़्यादा, और जिनके ऑर्बिटल्स ऑलरेडी भरे हुए हैं, फुली फिल्ड हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। सो ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स H ions have more tendency to gain the electron as compared to sodium ions. Second reason. Third reason, for all ionic compounds containing a metal, जितने भी ionic compounds हैं अगर उनमें metal है तो metal is more reactive than hydrogen. ठीक है स्टूडेंट, so metals are more reactive than hydrogen. So electrolysis of a solution of compound will produce hydrogen rather than metal. मेटल स्टूडेंट क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, तो बाकी क्या रह गया, हाइड्रोजन। सो दैट्स वाई क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। देयर आर 3 रीजंस, मास ऑफ H ions इज लेसर देन सोडियम आयन, सो दैट्स वाई इट्स मोबिलिटी, इट्स मूवमेंट इज मोर देन सोडियम आयंस इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे पहले कौन पहुंच गया, सोडियम आयंस, सॉरी H ions। अब H ions के ऑर्बिटल्स के हैं एम्प्टी और सोडियम आयंस के ऑर्बिटल्स के हैं फुली फिल्ड। इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन किसकी ज़्यादा, H ions की, क्योंकि इसके ऑर्बिटल्स ऑलरेडी खाली हैं तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होगी, ज़्यादा। इसके ऑर्बिटल्स ऑलरेडी भरे हुए हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। थर्ड रीजन, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, मीन सोडियम इज मोर रिएक्टिव। अगर आपका सोडियम बन भी जाता है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे सोडियम बन भी जाता है, देन सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इफ सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन तो सोडियम तो यही रह गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे इवॉल्व क्या हुआ, हाइड्रोजन। क्या इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन। सो देयर आर 3 रीजंस टू गेन द इलेक्ट्रॉन बाय H ions एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। हाइड्रोजन बना एंड दीज हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट। सो अब यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए थे, H ions। अब इस वाले बीकर में क्या रह गया है, सोडियम आयंस। क्या रह गया है, सोडियम आयंस। और दूसरा कौन सा रह गया हुआ है, OH आयंस, क्योंकि इस वाले बीकर में क्या था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स Na+ Cl नेगेटिव एंड वाटर H+ OH नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई थी। H ions यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई है। और बाकी कौन से आयंस बचे हैं स्टूडेंट, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले बीकर में जो आपकी थर्ड टेस्ट ट्यूब थी, आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा। सो अब द पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। यहाँ पे अब क्या आ गया, यहाँ से H ions आए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो हाइड्रोजन एटम्स बन गए। Here the H ions gain electron to make hydrogen atoms and then hydrogen atoms make to form H2 molecules hydrogen gas. अब कह रहा है आर द H ions ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। अब स्टूडेंट H ions क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इट मीन यहाँ पे क्या आंसर आना है, रिड्यूस्ड। तो H ions क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय ईच H ion, 1 इलेक्ट्रॉन। And how many H ions join to make H2 molecule, 2 H ions to form make H2 molecule, and half equation for this redox reaction. So student आपकी half equation क्या आ गई, 2 H ions gains 2 electrons, कहाँ से, from cathode negative electrode से, क्या बना, hydrogen gas, and this is the reduction reaction. This is the reduction reaction. H ions gain 2 electrons, 2 H ions gains 2 electrons to form H2 molecule hydrogen gas, a colorless gas.
यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। अब सुन यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास, सोडियम आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस। सोडियम क्लोराइड हैज़ 4 टाइप्स ऑफ आयंस, मैं बता चुका हूँ आपको। सोडियम क्लोराइड से क्या प्रोड्यूस हुआ था, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। फ्रॉम सोडियम क्लोराइड वाटर से क्या प्रोड्यूस हुआ है, H आयंस एंड OH आयंस। क्लोराइड आयंस फ्रॉम क्लोरीन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्लोराइड आयंस आके क्या बन गए थे, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस। और यहाँ पे H आयंस जाके क्या प्रोड्यूस हो गई थी, हाइड्रोजन गैस। अब कह रहा बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या अब हमारे पास, सोडियम आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। इस वाले बीकर में क्या बचा हुआ है, सोडियम आयंस एंड OH आयंस। सो कह रहा है व्हाट्स लेफ्ट, H ions, sorry, Na plus ions, sodium ions and OH ions are left behind. And so, अब स्टूडेंट सोडियम प्लस Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस मिलके क्या बनेंगे आपके, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, आपका बेसिक सोल्यूशन बन गया, स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन बन गया NaOH। अब इस वाले बीकर में अब क्या बचा हुआ है स्टूडेंट, NaOH, a strong sodium hydroxide solution is formed. So overall equation for electrolysis of sodium chloride solution, so क्या आई, NaCl plus water, क्या बना स्टूडेंट, हाइड्रोजन इज इवॉल्व एट कैथोड, क्लोरीन इज इवॉल्व एट एनोड, और बाकी सोल्यूशन में क्या रह गया, बाकी रिमेन्स NaOH इन द सोल्यूशन। सो रिमेनिंग सोल्यूशन बिकम्स बेसिक इन नेचर। Student, this is the very very important question for your board exams as well as your NEET exam. ये कम से कम मैं 99% टाइम्स ये एग्जाम्स में देख चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सोल्यूशन लेंगे उसकी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, then why hydrogen gas is evolved at cathode, chlorine is evolved at anode and remaining solution becomes basic in nature। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ, जो हमने अभी देखे प्रोडक्ट्स, कौन सा है प्रोडक्ट्स स्टूडेंट हमारे पास, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग सोल्यूशन में क्या बचा, NaOH। तीन चीजें हमारे पास आई थी। अब कह रहा है उनके यूजेस क्या हैं। क्लोरीन, क्लोरीन यूज होता है स्टूडेंट फॉर किलिंग बैक्टीरिया इन वाटर, फॉर ब्लीचिंग पर्पस के लिए और मेकिंग प्लास्टिक्स के लिए, लाइक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट। एंड हाइड्रोजन यूज्ड होती है फॉर मेकिंग मैग्रीन, फर्टिलाइजर्स एंड फॉर रॉकेट फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन इज वेरी यूजफुल गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैनी केमिकल रिएक्शंस सच एज मेकिंग सोप। अब बेस है स्टूडेंट तो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड्स को, टू न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स एंड मेकिंग पेपर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट यूजेस फॉर क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए थे, दीज आर द यूजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रोलिसिस का फायदा क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब कह रहा है क्लोरीन इज एक्सपेक्टेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बट कह रहा है हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर सरप्राइजिंग प्रोडक्ट्स। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि आना तो सोडियम डिपॉजिट होना चाहिए था, लेकिन इवॉल्व क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। और सोल्यूशन बेसिक कैसे हो गया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से, और यही वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन electronic conductors and electrolytic conductors. First, electronic conductors. In electronic conductors, flow of electricity takes place without the decomposition of any substance. So, आपके मोबाइल फोन्स हैं स्टूडेंट, वो क्या है, उसमें कौन सी कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। एंड रनिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, उसका कारण क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स। एंड कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता है, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। हम अभी देख चुके हैं सोडियम क्लोराइड की क्या हुई थी, डिकम्पोजिशन, वाटर की क्या हुई थी, डिकम्पोजिशन।
तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे होती है, टेक्स प्लेस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, बट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कोई भी सब्सटेंस आपका डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे कंडक्शन का कारण कौन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके मोबाइल फोन्स हैं वो क्यों रन कर रहे हैं, बिकॉज उनमें क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इन electrolytic conductors flow of electricity is due to movement of ions। स्टूडेंट हम ये देख चुके हैं अभी, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एच आयंस, ओ एच आयंस, इनकी मूवमेंट से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन electrolytic conductors flow of electricity is due to movement of ions। Now in this case electronic conductors conduction decreases with increase in temperature। आप सुन देखते हो जब टेम्परेचर राइज कर जाता है तो आपका मोबाइल फोन भी क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। इट मीन्स उसकी कंडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज। सो कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपका जर्मेनियम क्रिस्टल है, दिस इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल्स किससे बनते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल ये आपका जर्मेनियम क्रिस्टल है, अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ब्रेक कर जाएगा, और ये क्रिस्टल भी ब्रेक कर जाएगा। क्रिस्टल ब्रेक कर जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड ये ब्रेक हो गया विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर राइज दिस कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, क्रिस्टल ब्रेक्स, तो कंडक्शन भी क्या हो गई, डिक्रीज। सो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डिक्रीज। बट अगर स्टूडेंट आपका फॉर एग्जांपल NaCl है, अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसकी जो डिकम्पोजिशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज मोर, टाइम भी कम लगेगा और डिकम्पोजिशन भी क्या होगी, ज़्यादा। हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो ये वाला सब्सटेंस क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ज़्यादा डिकम्पोज होगा। ज़्यादा डिकम्पोज होगा तो नंबर ऑफ आइंस क्या बनेंगे, ज़्यादा। जितने नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा बनेंगे तो कंडक्शन क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कंडक्शन का कारण कौन है, आइंस। और जितना टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेंगे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिकम्पोज। जितना ज़्यादा डिकम्पोज होगा उतने नंबर ऑफ आयन ज़्यादा बनेंगे। जितने नंबर ऑफ आयन ज़्यादा बनेंगे उतनी कंडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। सो कंडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। This we will discuss in next lecture. Thanks.